تمہاری کیا رائے ہے آبا مصعب؟ عبیداللہ نے ہمیں کھانے پر بلایا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا کروں۔ مجھے بھی اس کا دعوت نامہ ملا ہے، جا کر دیکھوں تو صحیح یہ ملعون ہم سے آخر کیا چاہتا ہے۔ خوش آمدید میرے محترم بھائیوں اور کوفے کے سربراہ، خوش آمدید۔ آپ کے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ہمیں بھی بہت خوشی میرے مولا، خوش آمدید یا عبیداللہ۔ لیکن ہانی بن عروہ آپ لوگوں کے درمیان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میرے مولا سنا ہے وہ بیمار ہے اور آپ سے ملاقات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو پھر کل شام میں خود ہی جا کر ان سے ملوں گا۔ ہانی کل شام ابن زیاد تم سے ملاقات کرنے آ رہا ہے، اسے قتل کرنے کا یہ سنہرا موقع ہے۔ اے مسلم، اسے قتل کر دو اور اس کے بعد تم محل کی طرف جاؤ، سارے عراق کے لوگ تمہارے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ نہیں ہے شریک، دھوکہ اور فریب بڑی بری بات ہے۔ اہل بیت کی فطرت میں دھوکہ، فریب اور ناانصافی شامل نہیں ہے۔ لیکن ابن زیاد ایک ظالم حاکم ہے، اس کی تاریخ بہت سیاہ ہے مسلم۔ نہیں شریک، اسے میرے گھر میں قتل کرنا مناسب نہیں۔ مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈ لیا، وہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں ہے۔ اے شخص، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جاؤ اسے فوراً گرفتار کر کے لاؤ اور میرے سامنے پیش کرو۔ السلام علیکم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی اور ہتھیاروں کو چھپایا؟ اے ہانی، تم نے یہ بات مجھ سے چھپا کر رکھی۔ بالکل نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے ابن زیاد، اگر چاہیں تو آپ اس کی تحقیقات کروا سکتے ہیں ابن زیاد۔ جس نے مجھے خبر دی ہے وہ میرا وفادار آدمی ہے، فوراً باہر آؤ اور اسے جھوٹا ثابت کر دو۔ مرحبا اے ہانی، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ ہاں، بہت اچھی طرح جھوٹے اور مکار انسان، خدا کی لعنت ہو تم پر۔ اچھی طرح سن لو ہانی، اگر تم نے مسلم کو میرے حوالے نہیں کیا تو میں تمہاری گردن کاٹ کر تمہیں محل کی چھت سے پھینکنے کا حکم دوں گا۔ خدا قسم وہ میری پناہ میں بھی ہوتے تو بھی میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کرتا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ تم مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اسے یہاں سے لے جاؤ، یہ ہمارے گھر میں مجھ سے زبان چلا رہا ہے، لے جاؤ اسے۔ لعنت ہے تم پر جھوٹے اور مکار انسان۔ اب تمہارا خون میرے لیے حلال ہو گیا ہے، میں ابھی تمہارا سر کاٹ کر محل کو اوپر سے پھینک دیتا ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ میرے مولا ابن زیاد، ہانی کے ہتھیار بند ساتھیوں نے محل کو گھیر لیا ہے۔ ٹھیک سے سنو، فوراً باہر جاؤ اور انہیں بتا دو کہ ان کا آدمی زندہ ہے اور شہر کے ضروری امور پر حاکم ان سے بات کر رہے ہیں اور جلد ہی اپنے ساتھیوں کے درمیان ہوں گے۔ اے لوگو خاموش ہو جاؤ۔ محل میں ہانی اور ہمارے مولا ابن زیاد تم لوگوں کے متعلق امور پر بات چیت کر رہے ہیں۔ بس تھوڑی ہی دیر میں ہانی باہر نکلیں گے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے انشاءاللہ۔ تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ انہیں ہر طرف سے گھیرے میں لے لو اور دیکھو کہیں محل میں گھسنے نہ پائے۔
हम इनके फासिद इरादों का पूरे तौर पर खात्मा कर देंगे। मुस्लिम और उनकी फौज ने महल को घेर रखा है और अब वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं मेरे आका। तमाम दरवाजे और खिड़कियां जल्द बंद कर दो और तीरंदाजों को छत पर भेज दो। बहुत ज्यादा है, हम उन पर हावी नहीं हो सकते। छत के ऊपर से उन पर तीरों की बारिश करो ताकि सब अपनी जगह पर ढेर हो जाए। उन्हें महल में दाखिल होने का कोई मौका न दो। सूरत हाल बड़ी खतरनाक होती जा रही है, अब क्या किया जाए? जल्दी से हरकत में आओ, चारों तरफ जासूसों को फैला दो और कहो कि ये अफवाहें फैलाए कि मुआविया की फौज की टुकड़ियां उनका खात्मा करने के लिए पहुंच रही है। कहो कि मस्जिद कोफा में भी लोग मौजूद हैं। ऐ लोगो, इससे पहले कि शाम की फौज हम पर धावा बोले, घेराव को खत्म कर दो। ए लोगो सुनो, कहा जाता है यजीद की फौज कूफा के बहुत करीब आ पहुंची है। ए लोगो, घेराबंदी तोड़ दो क्योंकि यजीद की ताकतवर फौज कूफे के बाहर खड़ी हुई है। चलो भागो भागो। बसरा से आई हुई इब्ने जियाद की बहादुर फौज ने हमें घेर रखा है। वो कूफा में दाखिल हो चुकी है। ऐ शरीर आदमी चुप हो जा वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। यकीनन वो सच कह रहा है। हाँ मेरे भाई, वो तो सच कह रहा है। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। बेटा, मैं तुम्हारे लिए डर महसूस कर रहा हूँ। तुम घर जाओ, मैं यहाँ मुस्लिम के साथ ठहरता हूँ। मैंने अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया है। डरता हूँ कोई जालिम उन्हें तकलीफ न ऐ पहुँचाए। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, कुछ देर ठहरो। कुछ देर इंतजार करो मेरे भाई, कुछ देर इंतजार करो मेरे भाई। कुछ देर इंतजार करो मेरे भाई, हम जल्द ही उन पर हावी हो जाएंगे। मत जाओ, मत जाओ। मेरे मौला, हमारा मंसूबा पूरी तरह कामयाब हो गया है। सब लोग मुंतशिर हो चुके हैं। अब मुस्लिम बिल्कुल अकेले रह गए हैं। तुम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हर एक को उसका इनाम दूंगा और जो भी मुस्लिम को गिरफ्तार करेगा उसे अलग से दूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे मौला। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे हाथों से बचकर निकल जाए। हमने पूरी तैयारी कर रखी है मेरे मौला। अल्लाह अकबर। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कोफा के लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की और सब अपने घर चले गए। बिन्ते रसूलुल्लाह के फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उन्होंने जो वादा किया था उसे तोड़ दिया। अब हमें अपने अपने घरों को लौटना चाहिए। इंशाअल्लाह कल सुबह फिर जमा होंगे और महल में हम सब लोग साथ में घुस जाएंगे। कल सुबह आप सब लोग दोबारा इकट्ठा हो जाएं ताकि महल पर हमला किया जा सके। तुम्हारी राय बिल्कुल दुरुस्त है मेरे भाई, हम यकीनन ऐसा ही करेंगे। बेहतर है कि हम अभी चले जाएं। इंशाअल्लाह कल सुबह फिर मिलेंगे। तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई। अब हम लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए क्योंकि मलून इब्ने जियाद के जासूस हमें हर तरफ तलाश कर रहे हैं। रात का साया पड़ते ही मुस्लिम के आखिरी साथी भी उनका साथ छोड़कर चले गए। अब मुस्लिम कूफा की एक गली में बिल्कुल तन्हा और अकेले रह गए। मुस्लिम एक पनाहगाह की तलाश में थे। उन्हें कहीं भी पनाह नहीं मिल रही थी। जिन लोगों ने इमाम हुसैन को दावत दी थी ऐन वक्त पर साथ छोड़कर चले गए। प्यास की शिद्दत से मेरे होंठ सूख गए हैं। वहाँ एक औरत नजर आ रही है, उससे पानी मांगता हूँ वरना मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। खुशामदीद है अल्लाह की रहमत। खुदा की नेक बीबी, क्या मुझे पानी पिलाओगी? खुशामदीद बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ।
लो पियो। शुक्रिया आपका। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ बेटा कि दरवाजे के करीब से हट जाओ। वो औरत रहमदिली और अखलाक का एक मुजस्समा थी, लेकिन उनकी आंखों से परेशानी, बेबसी और मजबूरी साफ जाहिर थी। हाँ, वो तो अभी तक वहीं बैठा हुआ है। उसे क्या चाहिए? पास जाऊं और उसे हालात के बारे में बताऊं? क्या तुमने पानी नहीं पिया? हाँ, खुदा की नेक बीबी। जाओ, अपने घर वालों के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ दरवाजे पर बैठना ठीक नहीं है। ऐ खुदा की नेक बीबी, इस शहर में ना तो मेरा कोई घर है और ना ही कभी तो तुम कौन हो? मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ, इमाम हुसैन का सफीर और चचा साद भाई। कुफे वालों ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। क्या तुम वाकई मुस्लिम इब्ने अकील हो, फर्जंद रसूल इमाम हुसैन के सफीर? हाँ, वो मैं ही हूँ बीबी। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। घर के अंदर तशरीफ ले आइए इब्ने अकील। इब्ने जियाद के जासूस तुम्हें तलाश कर रहे हैं। खुदा की लानत हो उस पर। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ ऐ खुदा की नेक बीबी। कयामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल से इसका सिला तुम्हें जरूर मिलेगा। कौन खटखटा रहा है? क्या तुम हो मेरे बेटे? हाँ, मैं हूँ माँ। जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी। कहाँ थे अभी तक? मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी मेरे बेटे। बहुत देर कर दिया आज मैंने। बहुत वाकयात पेश आए मेरी माँ। काश तुम मेरे साथ होती। जब लोगों ने सुना कि उनसे जंग करने के लिए यजीद की फौज शाम से आ रही है, तो वो सब मुस्लिम को अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए। ये भी ऐलान हुआ कि मुस्लिम को गिरफ्तार करने वाले को इनाम दिया क्या जाएगा। तुम सच कह रहे हो? क्या लोगों ने इब्ने अकील के साथ धोखा किया और उन्हें अकेला छोड़ दिया? हाँ हाँ मेरी माँ, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि मुस्लिम इब्ने अकील कहाँ है। हाँ, ये खाना और पानी किसके लिए ले जा रही? मुझे मालूम करना चाहिए आखिर मामला क्या है। देख रहा हूँ कि उस कमरे में तुम कुछ ज्यादा ही जा रही हो माँ। ऐसे कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मुझे मालूम होना चाहिए। तुम उस कमरे में कुछ ज्यादा ही जा रही हो। मुझे बताओ क्या बात है माँ, मुझे बताओ क्या बात है। कौन है? मैंने कहा ना बेटा, वहाँ कुछ भी नहीं मुझे है। बताओ, वरना मैं खुद जाकर देखता वहाँ कौन है। ठीक है बेटा, बताती हूँ, लेकिन इस बात को राज ही रखना। ऐसा ही होगा माँ, यकीन करो, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ माँ, किसी को भी इस बात की खबर नहीं होगी। बेटे, वो मुस्लिम इब्ने अकील है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। हाँ, वाकई ये वही है। मौका अच्छा है, कल सुबह इस राज को फाश करके इब्ने जियाद से भारी इनाम हासिल करूंगा। मुस्लिम बिन अकील का सुराग मिल गया है मेरे आका। सुनो इब्ने अशस, वो हर हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। देखो फरार ना होने पाए। तुम सब लोग चारों तरफ फैल जाओ और कुछ लोग छत पर चढ़ जाओ। ये तो घोड़ों की टापों की आवाज है। यकीनन ये लोग मुझे ही तलाश कर रहे हैं। बाहर निकलने का कोई मौका ना दो। आपका हुक्म सर आंखों पर। हम इसी वक्त उस पर पिछली जानिब से हमला करेंगे। मैंने आजादी की हालत में कत्ल होने की कसम खाई है। मौत से मैं नहीं डरता। सबको लौट कर जाना है अपने दायमी मकाम पर, उसी तरह जिस तरह सूरज की शुआएं जमीन पर आती हैं और फिर अपने मकाम पर लौट जाती हैं। मैं इस हकीकत से न इनकार करता हूँ और न ही डरता हूँ।
मेरे आका, वो बनी हाशिम का एक बहादुर जवान मर्द है। उसने हमारे बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। तुम लोग एक एक करके उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। जाओ और सब मिलकर हमला करो। मेरे आका, वो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर है। हम उसे गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। हौले और फरेब से काम लो। छत के ऊपर चढ़ जाओ और उस पर आग बरसाओ ताकि वो वहाँ से बाहर निकल आए। क्या मुझे पानी पिलाओगे? तुमने इससे ज्यादा ठंडा पानी देखा है? वल्लाह तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, एक कतरा भी नहीं। यहाँ तक कि तुम जहन्नुम का मजा क्या चख लो। बक रहा है? कौन है तू? मैं कौन हूँ इब्ने अकील? मैं उसका बेटा हूँ जिसने अपने इमाम को मशवरा दिया जब तुमने फरेब दिया और उनकी मुखालिफत की। क्या अब भी नहीं पहचाना मुझे? तेरी माँ ने तुझे कितना शकी और शफाक बनाया है। तू और तेरे लोग जहन्नम की आग में जलने के ज्यादा सजावार हैं।